चैट बंद करें, हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे. Okay, right. Okay, guys, let me just write the title of the class and then we start. Okay. Any doubts in what we did yesterday? How winds are moving, how sea breeze is created, how land breeze is created. No, Why? sir. Who is Yachna? Is it Siddharth? सर मैं सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, तू कल नहीं आया था क्लास में? क्या आता है? अलग अलग प्रकार की आईडी. कहीं बाहर हो सिद्धार्थ? यस सर. विच कंट्री? सर हूँ तो इंडिया में. अच्छा, बाहर का जनरली मतलब होता है कि सर मेरे को लगा कि कहीं यूके या पर आपने बड़ा बोर्ड ले लिया है ना? बिगर बोर्ड. हाँ सर, वही लग रहा है. बोर्ड सर ने बताया Class तो था 7. कल. साइंस. सर कल जो आपने एक्सप्लेन किया था उसमें मुझे ट्रेड विंड वाला जो वो है वो समझ नहीं आया था ठीक से. अभी बता दो. चैप्टर 8, दिस वाज विंड स्टॉर्म एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके दोस्तों, यहीं से शुरू कर देता हूं मैं अपनी बात. व्हाट आर ट्रेड विंड्स? तो लोकल विंड्स तो हमें समझ में आ गया. लोकल विंड्स कौन सी वाली हैं? जो यहाँ पे रणवीर सिंह खड़ा हुआ अपनी बालकनी में अपना मजे ले रहा है, जो कि सी से यार ये सी है, ये लैंड है. दीज आर लोकल विंड्स, ये जो ऐसे चलती. सो लोकल विंड्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स. Local winds are two type. First is sea breeze and second is land breeze. Yesterday I also explained to you with the help of a globe that when the sun is hitting the globe directly here, so light is coming here. कल मैं टॉर्च भी मार के दिखाया तुम्हें कि सेंटर में ज्यादा हीट होती है, साइडों में हीट कम होती है. So understandably the water in the ocean here and the air in the atmosphere here is much warmer as compared to this place and this place, other places. So temperature will keep on reducing like this. When the air heats up, तुम लोगों ने वो बैलून देखा कभी, जो बैलून दिखाते हैं कि हॉट एयर इसीलिए सर वहां का पानी जल्दी इवेपोरेट होता है. यस सर. Okay, so एक्सक्यूज मी सर. हाँ, बट ये evaporation का फॉर्मूला यहाँ पे अभी नहीं लागू होगा भाई. इधर सर evaporation नहीं आएगा. टेम्परेचर ह्यूमिड रहता है क्योंकि सन की रेज वहां पे डायरेक्टली. हाँ, वो पॉइंट ठीक है. एक मिनट, एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. या सी गाइस, लुक एट दिस. आई एम प्रेजेंटिंग नाउ. इफ यू वांट टू गो अप इन द एयर, यू कैन टेक अ बलून लाइक दिस. अरे यार योग्या, तू ना बिल्कुल जस्ट 1-2 सेकंड का टाइम तो लगेगा ना. मैंने बोला कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, आई एम शेयरिंग. 2 मिनट नहीं देती है. Okay, so if you want to go up in the air, you can take a balloon like this. Now how does this balloon work? Look at this. See, this is a big balloon which has got air inside it, and what is down below is a flame. Flame is heating up the air, only the air which is inside the balloon. Now this air will become lighter than the other air because heat हो गई. हीट होने से एक्सपेंड करती है, लाइट हो जाती है और ऊपर उठना शुरू कर देती है. Now if the air goes up, which is inside the balloon, people who are inside the balloon will also go up. Although people who go to Goa or other even Dubai and all, you guys can just enjoy this particular thing. But here basically why I am showing this to you is because the concept is like this. If the air is heated up, it will rise up. So if it will rise up from the equator, let's say this is your equator. We are here. This is equator. Equator air is heated up. It will start rising upwards. Achha, moreover, another reason like what my friend Shreyash has said, this water is also hot. Since this is hot water, whatever air is touching this water will also getting heated. So now air is getting heated because of two reasons: sunlight and hot water. Now this air is now rising up. So this is equator, 0 degree.
take an area, let's say 10 degree. Now 10 degree air, that is latitude, 10 degree latitude. What is the latitude of Tropic of Cancer? वेदांग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या लैटिट्यूड है? लैटिट्यूड मतलब लेटिव लाइन, लेटी लाइन। वेदांग, चैट बॉक्स में देखते हैं। ओके, लेट मी सी इन चैट बॉक्स। गाइस, आई एम जस्ट राइटिंग द Okay, sir. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से निकलता है। सर इतना इजी था। सर मैंने ना वो पॉइंट नहीं लगाया है, वो उसके बीच में स्पेस कर दिया है। तो सर 200 जूम से सर, कब आप क्लास लोगे? 23.5 नो प्रॉब्लम। शेष सर आप एक जूम मिनट। से कब क्लास लोगे? यस सर, जूम से ले लो सर, जूम से ना अच्छा होता है। अगर तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो बिल्कुल ले लूंगा। सर जूम से तुम जानते हो मैं फौजी आदमी हूँ, जो ज्यादा हाँ, परेशान करता है उसको मेरी बुद्धि पलट जाती है फिर। सर गोली से जवाब दे दो ना, स्नाइपर लगा के। बट अपने बच्चों को थोड़ी गोली से जवाब दूंगा मैं। ओके, लिसन टू मी गाइस। ओए ले लूंगा यार, श्रेयस मत, श्रेयस क्या फालतू बातें कर रहा है? क्लास चल रही है। You have sent me a link. I have taken cognizance of that. I'll do whatever is required to make our classes more interesting. देखो दोस्तों, क्या होता है, इंडिया के बीचों बीच से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारे इंडिया को दो भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे रहता है। सो अगर 10 डिग्री नॉर्थ की जो होगी वो थोड़ा सा ठंडा होगा। जब ये एयर ऊपर राइज कर रही होगी, वहां की एयर थोड़ा नीचे रहेगी, थोड़ी बहुत, और जब ये यहां से चली जाएगी तो दिस एयर विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। नाउ द प्रॉब्लम इज अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, लाइक ए फुटबॉल इट इज रोटेटिंग। तो होता क्या है, ये जो एयर विंड्स आती है थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है यहाँ पे आने में, ऐसी इधर से जाती है, तो ये हवाएं चलती है यहाँ पे। फिर अब जब ये हवाएं चलती हैं तो इस एरिया के अंदर जो शिप्स होते हैं वो अपनी सेल को ऊंचा कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। जब हवा जब टक्कर मारती है इसको तो आगे की तरफ आगे मूव करता है। और क्योंकि ये शिप जनरली ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पुराने जमाने के शिप, आजकल नहीं, आजकल तो खैर बात दूसरी है, तो पुराने जमाने से नाम पड़ा हुआ है ट्रेड विंड्स। तो ट्रेडिंग शिप्स जो होते हैं वो इसको यूज करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ओके सर। राइट गाइस, चलो आते हैं अपना नोट्स पे। भी नोट्स मैंने कर दिए, मेरी तबीयत लग रहा खराब हो रही है, फीवरिश लग रहा है मेरे को। चलो ना क्लैपिंग नहीं करोगे? किसके लिए क्लैपिंग करनी है? सर आपने अभी जो क्वेश्चन दिया था। अच्छा, हाँ, नहीं पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोचिंग क्लासेस खुलने वाली लंबे टाइम तक। ओके, स्कूल तो खुल गए। खुल रहे हैं। सर स्कूल खुल गए हैं। हाँ, स्कूल अलग होता है यार। स्कूल खुल रहे हैं, ट्यूशन भी खोल दो। नहीं खोल क्या नहीं सकते, सर? गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं खोल सकते। ये कोई लोकल ट्यूशन थोड़ी है कि किसी ने अपना ऐसे चला रखा है। सीसीएल रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट की, जीएसटी जाता है सीसीएल का, तुम्हारी फीस में जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को, मोदी जी के पास। समझ में आया? परमिशन ले लीजिए। लोकल कंपनी नहीं है। हाँ उतना बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ रही है सितंबर में। हाँ, वो तो बच्चे को सर, जब तो तक मैं तो स्कूल भी नहीं जाऊंगा, खुला भी तो। सर वो थर्ड वेव बच्चे को ज्यादा होगा। Okay, quite. Okay, I think all those people have given the answer. 23.5 is correct. Veer Jetli, you have to write north to 23.5 degree north. Okay, N, क्योंकि ऊपर वाले लैटिट्यूड नॉर्थ होते हैं, नीचे वाले साउथ होते हैं। चलो मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट। अभी कल किस ने नहीं पढ़ा था, मुझे नाम टाइप करके बता दो फटाफट कि सर आई डिड नॉट रीड यस्टरडे। मैं चैट बॉक्स के अंदर लाइन भेज रहा हूँ, इसके बाद सर मैं ठीक है लिख दो। मैं लाइन भेज रहा हूँ, अभी लिख देना नॉट रेड, NR। ये पढ़ लिया था हमने, ये पढ़ लिया था एयर एक्सपेंशन हीटिंग। हाँ, यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहां से पढ़ें पॉइंट नंबर 13 से। ओके, लेट मी सी द पीपल हु हैव नॉट रेड। योग्या डिड नॉट रीड, यशस्वी नॉट रेड, ऋषित नॉट रेड, अनुभव
एंड सिद्धार्थ श्रेयस। इसी सीक्वेंस में चलेंगे यार हम लोग। श्रेयांश ओके ठीक है। योग्या विल लीड मेरे को फर्स्ट। सर डाउट है, मैंने पढ़ा तो नहीं। ओके ठीक है, डाउट मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, कल की वीडियो देख लेता हूँ। सर योग्या, कर्सिल यशस्वी, Yes, वीर राघव, ने पढ़ा था अनुभव, और वीर ने पढ़ा था। सिद्धार्थ, श्रेयस एंड श्रेयस राणा। देखता हूँ मैं। या और आई विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी। हर्षिता ने भी नहीं पढ़ा था, हर्षिता विल रीड, सॉरी सोनाक्षी विल रीड। हर्षिता ने कल पढ़ लिया था नहीं सर। पढ़ा था। हर्षिता, वीर उमर, ने पढ़ा, नियति वीर ने और पढ़ा नियति ने था, पढ़ा और था वीर ने सर। पढ़ा, नियति, नियति। वीर। ओके यशस्वी, योग्या आप भी स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर Yes, 13, sir. एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। Air एक छोटा सा expands सिंपल on सी बात heating. बताता हूँ, एक मिनट योग्य ध्यान दो। Okay. देखो ऐसा होता क्यों है, क्यों एक्सपेंड करती है हीटिंग पे? यार जैसे हम हीट करते हैं ना, एयर के जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, स्विमिंग पूल में तुम नहा रहे हो और स्विमिंग पूल का फट से किसी ने पानी गर्म कर दिया, तुम उछलने शुरू कर दोगे भाई साहब वहीं से, ओ निकलो निकलो भागो भागो। ऐसे ही एयर के मॉलिक्यूल भी जंप मारना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि जंप मारते हैं तो उनका एरिया बढ़ जाता है जो वाइब्रेशन का, और उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है गैस का, एक्सपैंड होने लगती है। अगर कभी आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक काम करो, एक आप बैलून ले लो, बैलून के अंदर हवा भर लो और कम भरना हवा। उसके बाद अपनी मम्मा को बोलना हेयर ड्रायर देना मम्मा अपना, तो ले लेना हेयर ड्रायर, अगर वो दे देती है तो। हेयर ड्रायर से बैलून को पे हवा, गर्म हवा मारना। थोड़ी देर बाद आप देखना वो बैलून फूलना शुरू हो जाएगा, वो टाइट होता जाएगा, टाइट होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। और ज्यादा देर तक एक जगह मत मारना, चारों तरफ से करना, नहीं तो फट जाएगा ऐसे। और थोड़ी देर बाद आप देखना, थोड़ी देर बाद वो फट जाएगा ऐसे करके, क्यों? उसकी एयर के अंदर की एयर इतनी एक्सपैंड हो जाएगी गर्म करने की वजह से। या ये हो गया। Yes, गो sir. हेड, यो गो हेड। Yes, sir. Air expands on heating. Gases or air expand more than solid and liquid on heating. Air is a mixture of gases. On heating, the molecules of air gain काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy. What is that? काइनेटिक एनर्जी दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है जो कि मूवमेंट की वजह से होती है, जैसे कि जो बॉल एक आ रही है, सपोज करो, ये समझ लो सब लोग, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दो होती है। ठीक, सर ये इट्स लाइक काइनेटिक इम्पैक्टर। इट्स लाइक काइनेटिक, काइनेटिक इम्पैक्टर। ओके। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मूवमेंट, एनर्जी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट। इट्स लाइक काइनेटिक इम्पैक्टर। हाँ हाँ, तो 3 बार को एक बात को क्यों बोले यार? मैंने ओके बोल तो दिया यार। तू भी ना, मतलब यू विल नॉट मेक ए गुड वो इंटरव्यूअर। किसी का इंटरव्यू करने जाएगा, उस बंदे से एक ही बार 3 बार क्वेश्चन पूछेगा। अब मेरे जैसा कोई बंदा पड़ गया तेरे पल्ले तो कान के नीचे लगा देगा। एक ही क्वेश्चन को 3 बार क्यों बोले जा रहा भाई? सीधी बात है। नहीं नहीं, एक बात बता दो, मेरे पास कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा है सोनिया गांधी का, या जैसे राहुल गांधी का, या मोदी का, तो खैर कोई इंटरव्यू लेता नहीं, वो देता नहीं किसी को इंटरव्यू। ठीक है, अमित शाह के लिए पहुंच गया, सर आप एक बात बताओ देश में क्या चल रहा है? वो सोच रहा है, सर देश में क्या चल रहा है, वो देश में क्या चल रहा है, वो अमित शाह ऐसा उठाएगा, मुझे बताओ देश में क्या चल रहा है, ओ इसको जेल में डाल दो, इसको निकलना नहीं चाहिए जेल से। ये हाल हो रखा है श्रेयस मनोज का। काइनेटिक इम्पैक्टर, सवाल करते हैं यार। और सेकंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? इट इज बिकॉज ऑफ, मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं आपको, ड्यू टू पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी दिस इज पोटेंशियल और एबिलिटी टू वर्क और पोजीशन बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं। अब देखो, एक क्रिकेट की बॉल है और किसी प्लेयर ने ऐसे बॉल फेंकी जोर से, या किसी बंदे ने एक पत्थर मार दिया, पत्थर, तो पत्थर जो है उसके अंदर स्पीड है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो मोशन की वजह से, ये बॉल के अंदर जो एनर्जी है वो मोशन की वजह से। सो दिस इज अ मूविंग बॉल। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, अपना करंट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर होती है? बो एरो के अंदर। बो के अंदर जब हम बो की स्ट्रिंग को ऐसा खींच देंगे पिच पे, ऐसे ऐसे, मतलब ये बो है हमारा, गड़बड़ बन गया, ये बो है और ये स्ट्रिंग है। अगर हम स्ट्रिंग को पीछे खींच लें और इसमें एक एरो लगाएं और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। या फिर आप एक बात बताओ, आपने ऊपर की तरफ एयर बॉल फेंकी, बॉल में काइनेटिक एनर्जी है,
स्पीड धीरे कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। और जैसे बल ऊपर पहुंच गई, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, अगर आपने इसको खिसका दिया तो नीचे आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। तो रास्ता भटकाना। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक। रास्ता भटकाना, यार तूने आज फिर दवाई नहीं ली अपनी, आज फिर प्रॉब्लम हो रही क्लास में इसलिए। तो सर मैंने काइनेटिक इम्पैक्टर के बारे में पढ़ा था, नासा ने बनाया था उसे एस्ट्रॉइड्स को अर्थ से बचाने के लिए। अब तेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, सर मेरे से पूछ क्यों नहीं हो रही कि इम्पैक्टर क्या हो रहा है। ओके चलो भाई कंटिन्यू करें। Yes, sir. It moves away from each other, thus occupying more space. Therefore, the air becomes lighter. Warm air rises up, whereas comparatively cool air tends to sink downwards on Earth's surface. Point 14. The term expansion of air means the increase in the volume of air. When the air is heated, its volume increases and occupies a bigger space. ओके बस हो गया, बाकी लोगों को चांस देता हूँ। यशस्वी पॉइंट नंबर 15 से प्लीज शुरू करें। Point number 16. Yeah, 15. Okay. When the air is heated, it becomes lighter and rises up in the sky. This is the reason that when we burn wood, the smoke rises along with the hot air near the place of fire. This can be demonstrated by the following activities. Okay, let me see if the activity is worth reading or not. हाँ ये नहीं है, क्योंकि बस बेसिकली जो मैंने तुम्हें हॉट एयर बलून दिखाया ना अभी, that is a good example. Whenever you heat the air, it will become lighter and try to go up, and people who standing in that balloon will also go up. Okay. पेपर बैग छोड़ दो, सब छोड़ दो, बर्निंग कैंडल फैंडल, मतलब समझ लो कि अगर हीट करेंगे तो आग जाएगी। यस, पॉइंट नंबर 20 यशस्वी। Okay, sir. This part of air is utilized in launching of hot air balloons. In nature, there are several situations where warm air rises at a place. At a place. The air pressure at the place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes in to fill its place. Okay, ये चीज मैं बता देता हूँ। Though I explained this in case of mute होना है, though I explained this, so what happens guys? Same thing, 2-3 बार मैं समझा चुका हूँ, फिर भी I think it will be worth it to explain to you again. So let us say, okay, sir. Heating of air. So let's say you have started a burner here or something like that has started. The air here will start rising. Now there less air from the surrounding areas which are cooler will start moving in here. This phenomena we have seen in trade winds also. This phenomena we've seen in local winds also. This always happens. The cold air will rush in to take the place of the hot air. Yashasvi, I will give you one more point to read. Please be there. Yeah, okay. Yeah, Yashasvi, now wind currents पढ़ लें आप. Wind currents. When the movement of air, which depends on the difference in air pressure in two regions, air moves from the region of higher pressure to the region of lower pressure in the atmosphere. This difference in air pressure is created by uneven heating or unequal heating on the earth. The region where the air rises an area of low pressure is created, while the region where the air sinks an area of high pressure is created. The uneven on the earth takes place under two situations. Okay, this I explained to you. Yashasvi, hold करो अभी. This I have explained this to you. So अभी इसको इसी को पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुकी है. तो बेसिकली होता क्या, जहाँ पे हीट होगी एयर ऊपर चल गई, जहाँ पे ठंडी है वो एयर नीचे आ जाएगी, और उस नीचे आने वाली एयर को जब भी जगह खाली मिलेगी तो इधर भागेगी, इसी तरफ भागेगी. तो इसकी वजह से हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, लूप क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर एयर ऐसे मूव करती रहती है. अच्छा, जब वो कोल्ड एयर उधर से सिंक करी, तब तक ये हॉट एयर ऊपर उठ के गई थी,
ये एटमॉस्फेयर में ठंडा होना शुरू कर देती है कि एटमॉस्फेयर ऊपर ठंडा है। अब ये ठंडा होने लगती है तो तब तक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, जहां ठंडी होनी शुरू करती है स्टार्ट कमिंग डाउन, उधर जो गई थी वो एयर राइज होने शुरू करती है। सो दिस इज अ साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन। हु इज नेक्स्ट यार? ये कहाँ गया अपना, किसकी बारी दी है ये? एक मिनट, यशस्वी ने पढ़ लिया। योग्या, यशस्वी, ओके, ऋषित 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 ऋषित, Yes, sir. देन Yes, अनुभव। sir. Yes, sir. Sharing. Go ahead. Uneven heating between equator and the poles. I explained this to you guys. Please now read this. Yeah. Sir, uneven heating between equators and the poles. Yeah. The region of the Earth which is closest to the equator, the Earth gets the maximum heat from the sun. Therefore, the air in these regions gets warmer and rises, creating an area of low air pressure. The cooler air from the region of up to 30-degree latitude between on either side of the equator moves or rushes toward the equator and replaces the warm rising air. This makes the wind to blow from north to south direction towards the equator. Therefore, the warmer at the poles, the air is colder than at latitude about 60 degree. Continue करते रहे, पढ़ते रहे. Therefore, hold. Yeah, continue, please. Yeah, पढ़. Therefore, the warmer air moves upwards and colder air rushes in. This makes the wind blow from the poles of the earth towards the warmer region up to about 60-degree altitudes. ओके, मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, हालांकि क्लास 9th का डायग्राम है, बट आई एम सेंडिंग दिस टू यू जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. दीज आर कॉल्ड लो प्रेशर बेल्ट्स बोलते हैं इनको, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट. जस्ट मेरे को 1 मिनट, दिस इज डायग्राम आई एम सेंडिंग दिस टू यू. सर वैसे ही मेरी टर्न थी सर, मेरी बात आप की थी. तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं फिर? मैंने जब नाम शुरू में अनाउंस कर दिए थे कि जिस चीज का नाम है उस हिसाब से चलेंगे. तुम कहीं बीच में कहीं गए होगे वॉशरूम? आप बीच में बोलते तो आप मुझे म्यूट कर जाता, मुझे डांट देते हो. मैं तो नहीं डांटता. तो मैं सोचा कि जब वो पढ़ लेगा फिर उसकी बात बता दूंगा. हाँ तो ठीक है, अच्छा किया ये. अच्छा, आई थिंक आई वुड कॉल दिस अ वाइज थिंग टू डू. गुड. आई विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी नाउ. आई अनुभव, डोंट वरी गाइस. एक अच्छा सा डायग्राम भेज रहा हूँ और मैं इसको प्रेजेंट भी कर रहा हूँ अभी. देखना कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है ये देखो. ये क्लास 9th का है, बट थोड़ा सा समझने में आसानी होगी अपने को. कहाँ है रिवीजन 7. क्या? ओके, आ गया रिवीजन 7. जा भाई, जल्दी आ जा. क्या ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तुम लोगों को ये. देखो सीन सब लोगों को दिख गया? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. स्क्रीन शेयर हो रही थी, मैंने हटाई हुई. देखो ये कहां से दिया मैंने डायग्राम, ये क्लास 9th की बुक है. जैसे सोशल साइंस क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है. बट क्योंकि हम उस चीज को समझ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में समझ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है उसका, नो हार्म. वैसे भी हमारे यहाँ से लोग, हमारी क्लास के लोग वीनस वगैरह पे जाते रहते हैं, तो उन लोगों को ये यूजफुल लग सकता है एक टाइम. यस सर, मतलब वीनस पे से श्रेष्ठ जाता है. मैं तो नाम तो नहीं लिया किसी का. सर तरह से टाइटली लॉक्ड प्लैनेट्स पे होता है. ओके, पे अटेंशन गाइस. देखो ये जो इक्वेटर है ना बीच में, इक्वेटर जैसे मैंने समझाया, विशेष ने पूछा तो मैंने बताया था, इक्वेटर पे लो प्रेशर की बेल्ट बनती है क्योंकि यहाँ की एयर पूरी ऊपर चली गई. यहाँ हो गया लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर को भरने के लिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से जो विंड है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर कूलर है, वो यहाँ भागेगी इसको रशिंग करने के लिए. अच्छा, जब ये रशिंग करने के लिए यहाँ भागेगी तो फिर एक और फिनोमेना होगा. देखो क्या फिनोमेना होता है कि यहाँ की एयर ये देखो, ये जो एयर यहाँ भागी है ना, इसके साथ क्या आवाज आई, इसके साथ ये एयर, ओके, ये जो पोलर है, पोल की जो कोल्ड एयर है वो 60 डिग्री साउथ वाले उसकी तरफ भागती है और ये 30 डिग्री से इधर भागती है. एक बेल्ट इधर बनती है.
एक फिर पोलर पे बेल्ट बनती है, 4-5 बेल्ट्स बनती हैं, इनको बेल्ट्स बोलते हैं, सब पोलर हाई लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे बेल्ट्स बनती रहती हैं, अलग अलग पैटर्न चलता रहता है। तो बेसिकली दिस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ आई थिंक अनुभव का चांस है, अनुभव आप पढ़े अभी। तो हो गया Yes, sir. इक्वेटर और पोल्स के बीच में, अभी अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, या Yes, sir. During summer, the Earth near to the equator warms faster than the water in the ocean. The air above the land gets warmer and rise up in the sky, creating a low pressure area. Therefore, the wind flow from the oceans towards the land. These winds carry a lot of moisture with them and bring rain. It is a part of water cycle. These rain bearing winds are winds, called the मॉनसून विंड। monsoon winds. होल्ड करना गाइस, मैं During समझा wind, देता हूँ। वेट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बहुत छोटा दिया, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। नाउ वी जस्ट गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड इंडिया के अंदर मानसून आता है, क्यों आता है। सारे कंट्रीज में मानसून नहीं आता, बाय द वे। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज व्हिच एक्सपीरियंस मानसून। यूके में नहीं आता, यूएस में नहीं आता, उनके यहाँ मानसून नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो तुम्हें पानी कैसे मिलता है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स को? उन रिवर्स है ना उनके पास, और बारिश तो होती है, पर Glaciers मानसून नहीं भी होता। होते हैं। You know, मानसून सर रिवर्स तो सर मानसून, हमारे पास तो रिवर्स भी है और हाँ सर हमारे पास बारिश भी होती है। रिवर्स तो सर हमारे कश्मीर वश्मीर वाले एरियाज में होती है, हाँ, और सर बिल्कुल सही हिमालय बात। जो 19 कंट्रीज को पानी देने का काम करता है। ठीक है, ओके। सो thanks for sharing this important input, just Shreya. information. Quiet. Hey, bye. Nobody to comment. He just experienced a knowledge bit with us. That's good. Okay, guys. तो होता क्या है, बाकी कंट्रीज में नहीं होता। जैसे लंदन का वेदर है, इंग्लैंड का वेदर है, वहाँ ज्यादातर बारिश होती रहती है, बर्फ गिरती रहती है। उनके हमारे जैसे मौसम नहीं होता। हमारे जो मौसम उसको मानसून बोलते हैं। मानसून का मतलब होता है मौसम, और अरेबिक वर्ड लिया गया, और मानसून एक्चुअली रिवर्सल बोलते हैं। अब देखना कैसे होगा, मैं तुम्हें इंडिया का मैप बना के दिखा रहा हूँ, देन एक्सप्लेन। दोस्तों होता क्या है, सो मॉनसून विच हैज बीन टेकन, ये एक वन मार्कर हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। मॉनसून वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर। अरेबिक का एक वर्ड है मौसम, MAUSE, जो हम लोग सब कुछ जानते हैं। आज तो मौसम बहुत खराब हो रहा है, बोलते हैं ना मौसम बहुत खराब हो रहा है यार आज, वही वाला मौसम, इसे अरेबिक वर्ड। अच्छा होता कैसे, देखो दोस्तों, ये देखो हमारा इंडिया यहाँ लोकेटेड है। म्यूट हो जाओ, किसका चल रहा है, म्यूट हो जाओ भाई, म्यूट हो जाओ। यहाँ पे है IOR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IOR। यहाँ है बॉब, यहाँ AS, क्या फुल फॉर्म है तीनों की, किसको नहीं आ रहा। ये तो मुझे पता है, मुझे पता है। अनुभव बोलो सर, अनुभव मैं बोलो। यस सर बीओबी मतलब यार मैं भूल रहा हूँ उसे। बे ऑफ बंगाल। IOR और सर दूसरा वाला अरेबिक सी, अरेबियन सी, ओके। अरेबियन सी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन रीजन बोलते हैं इसको, इंडियन ओशन रीजन बोलते हैं इसको। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, ओके सर। हमारा इक्वेटर जो है ना, हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है भैया। इक्वेटर हमारे बिल्कुल पास है। एक्चुअली इंडिया का जो यहाँ पे आइलैंड्स है ना, जो अंडमान निकोबार, ओए म्यूट हो ना, जो कार निकोबार का आइलैंड है भाई, वो ऑलमोस्ट 8 डिग्री पे है। 8 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री पे है, बस इतनी दूर है हमसे इक्वेटर से, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो जब इक्वेटर पे हीट हो रही है एयर, तो ये राइज कर रही है। ठीक है जी दोस्तों, राइज कर रहे हैं, ओके। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे ये पूरे जो सी है ना, जो समुद्र का एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर जब मार्च से लेके जून तक हमारे कंट्री में गर्मी होती है, मार्च टू जून। तो क्योंकि हीट हो गया हमारे यहाँ, बहुत हीटिंग है, बहुत ज्यादा हीट होगी, तो हमारे इंडिया की एयर ऊपर उठने लगती है। इधर ये पूरी राजस्थान, स्पेशली राजस्थान का एरिया, ये सब एरिया। अब ये एयर चली गई ऊपर, यहाँ थोड़ा सा वैक्यूम बन गया, लेकिन पानी के ऊपर की जो एयर है उतनी गर्म नहीं है, वो थोड़ी सी ठंडी है, ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी सी कोल्ड है। तो एयर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड LP, लो प्रेशर, एंड दिस इज हाई प्रेशर यहाँ पे।
तो ये इन विंड्स ऐसे चलने लगती हैं पूरी, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से, सर ये इंडिया की तरफ आने लगती है। तो when they are coming towards Indian LP, low pressure region, they are picking up some moisture from the sea, पानी उठाती हुई लेके आती है, और जब यहाँ पे एंटर करती है, यहाँ गोवा है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट इसको यहाँ घुसने नहीं देते, क्योंकि वेस्टर्न घाट थोड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ये क्या करती है, बॉम्बे के पास से एंटर करती है 29 मई को, ये नॉर्मल डेट इसकी ये होती है 29 मई को, बॉम्बे के पास से एंटर करती है यहाँ से और आगे बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड मानसून, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स रेन। तुम लोगों ने टीवी में सुना होगा कि मानसून बॉम्बे पहुंच गया है, मानसून केरला पहुंच गया है, मानसून वहां पहुंच गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गेस्ट आ रहा है, कहाँ तक पहुंच गया। सर मानसून यहाँ पे क्यों नहीं होता, दिल्ली में? दिल्ली तक नहीं पहुंचा ट्रैवल करके। दिल्ली में पहुंच जाता है, इस बार दिल्ली में बड़ा प्रेडिक्शन बहुत गलत हुआ, बहुत लेट पहुंचा। दिल्ली में जनरली 30 जून तक पहुंचता है, तो यहाँ पहुंच, और यहाँ पे ये क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता, और विंटर्स भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं हट, क्या उल्टा पुल्टा कुछ बोले जा रहा है, इफेक्ट क्यों नहीं करता, दिल्ली बारिश नहीं होती है सर, यहाँ पे स्वेटर्स मुझे एक चीज पूछनी थी अनुभव। हम बात कर रहे हैं अभी कौन से मंथ की, हम बात कर रहे हैं जून से लेके सितंबर तक के मंथ की, तब होता है। उसके बाद दोस्तों अनुभव वेट करो दोस्तों, बड़ी मजेदार बात होगी, देखना अभी क्या होगा, ये जो बारिश ये जो एयर है ना, जब पानी वानी गिरा देगी उसके बाद क्या होगा, तब तक ये सितंबर का महीना आ जाता है, और सितंबर का महीना होने से ठंडी होने लगती है, नीचे की तरफ बैठने लगती है। अब क्या हुआ, लैंड जो है वो कोल्ड होने लगी और वाटर वार्म होने लग गया। अब उल्टा मामला हो गया, अब यहाँ की एयर ऊपर चली गई, यहाँ एलपी बन गया इधर। अब ये जो मानसून है घूमता है उल्टा, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये ऐसे करके चलता है इंडिया, ऐसे बॉब के ऊपर से आता हुआ जाता है, बॉब के ऊपर से पानी उठाता है, और चेन्नई, यहाँ चेन्नई है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ चेन्नई है, चेन्नई में बारिश करता हुआ इधर जाता है वापस। इसलिए तुमने सुना होगा चेन्नई में कई बार सर्दियों में बाढ़ आती है, विंटर्स में बाढ़ आती है, क्योंकि जब तक ये वापस पहुंचता है यहाँ पे जनरली दिसंबर का महीना हो जाता है। तो दिस is called monsoon or Indian monsoon. Yeah, question. Sir, Anubhav, I have a question. Yeah. So can I ask? अरे यार बाबा गो एंड ना, मैंने या बोला ना, या का मतलब होता है यस। Sir, as you told, sir, the Australia is very near to the equator, but sir, who said ऑस्ट्रेलिया नीचे है, यहाँ नीचे। सर हमारे इंडिया में सर बहुत दूर इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से करीब। इंडिया लिसन टू मी, 10 डिग्री चैनल इंडिया में आता है यहाँ पे। लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो लिसन राइट, इंडिया का जो लोअर टिप है ना, ये लोअर टिप, दिस इज 8 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ये सॉरी 8, ये वाला टिप जो लास्ट वाला अंडमान निकोबार का, ये वाला। तो सर इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज है? इक्वेटर पे पूरा का पूरा अफ्रीका है। तो सर अफ्रीका में भी मतलब अफ्रीका में भी सर्दियां होती है क्या? सर्दियां होती है, सर्दियों में सर्दियां होंगी। तो सर वहाँ पे सर्दियां क्यों होती है सर? वो तो हर टाइम गर्म ही रहता होगा। वो तो हर टाइम वहाँ पे तो इक्वेटर पे है ना। ओके देख लो, समझ लो सब लोग समझ लो भाई, ये कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, ये है सन और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। 23 मार्च को समर इक्विनोक्स होता है, बराबर लाइट पड़ती है नॉर्थ और साउथ दोनों पे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अर्थ ऐसी है, अर्थ ऐसी है, ये अर्थ ऐसे ऐसे। फिर अर्थ क्योंकि टिल्टेड है तो अर्थ इधर चलती रहती, घूमती घूमती ऐसे जाएगी यहाँ पे। तो 22 जून को अर्थ की लोकेशन ऐसी हो जाती है, वो टिल्ट जो है ना अर्थ का ऐसे हो जाता है। अब क्या हो रहा है, ज्यादातर नदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने है और सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है, तो यहाँ अभी विंटर हो रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में अभी समर हो रही है। ठीक, अच्छा अब हम आएंगे 23 सितंबर को, फिर दोबारा से इक्वल हो गए दोनों। फिर हम आएंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को लोकेशन कैसी होती है अर्थ की, देखो अर्थ ऐसे झुकी होती है, ऐसे झुकी होती है, जैसे झुकी है ना अर्थ ऐसी चलती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। अभी तो 22 जून को पूरा नदर्न पार्ट पूरा तप रहा है, सदर्न पार्ट में सर्दी हो रखी है क्योंकि दूर है सन से। और अब हम 22 दिसंबर को आएंगे तो नदर्न पार्ट में सर्दी हो जाएगी, सदर्न पार्ट में अभी गर्मी है।
ठीक है 21 सर 23 इसलिए एंड हाफ ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ती है, दिसंबर, वो लोग क्योंकि क्रिसमस में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया ये रहा, तो इसलिए वो ये क्रिसमस में ऑस्ट्रेलिया, गर्मी ये मनाते रहा हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी पड़ रही है और हम लोग दूर है, तो अफ्रीका का भी जो पार्ट, अफ्रीका का जो पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में है वहां ठंडी पड़ेगी, क्योंकि वो सन से दूर है, वैसे करके रोटेट कर रहा है सन से दूर ऐसे, तो इसलिए विंटर्स में वहां भी थोड़ी बहुत सर्दी तो पड़ेगी। हाँ भाई अनुभव। लेकिन सर कंपेयर टू अदर कंट्रीज वहां पे हाँ थोड़ी कम सर्दियां पड़ेगी ना। दैट इज ट्रू, कंपेयर टू अदर कंट्री तो कम होगी, क्योंकि जो जो इक्वेटर के पास है वो कंपैरेटिवली वार्मर एरियाज होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ह्यूमिड होते हैं मुंबई यस के सर, ज्यादा। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? यस ओके, सो यस मानसून विंड पढ़ लिया अनुभव ने। अनुभव के बाद किसका चांस है? सर मेरी बात राघव की थी और राघव ने सर, टिक कर लिया है। राघव के तो बाद सर अभी सर अनुभव के यचना बाद की है, सर सर, यचना हाँ नाम की है। सिद्धार्थ की है सर। सिद्धार्थ, एक मिनट मेरे को देखने दो, मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों पे, तुम लोग कंफ्यूजन सर कंफ्यूज जा रहे हो मेरे सिद्धार्थ को। की है। ओके सिद्धार्थ 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 नहीं, देखो मेरी स्क्रीन में तुम्हें शेयर करके दिखा रहा हूँ अभी, मेरी स्क्रीन पे तुम लोग देख लो, मेरी स्क्रीन पे तुम लोग देख लो, सर देखो मेरी स्क्रीन पे पहले राघव आता है तब अनुभव आता है। हाँ ये वैसे ही बोले जा रहा था कि यस सर सर। देखो ये देख लो, ये देखो पहले राघव का नाम आ रहा है, पहले राघव आ रहा है ऊपर, ये रहा, सर पहले और उसके राघव बाद आ रहा है, अनुभव। उसके हाँ बाद आता है अनुभव। अनुभव, अनुभव ने पता नहीं गंदी सी इमोजी भी डाली हुई है कोई, उस इमोजी डालने के चक्कर लेट हो गया, उस इमोजी के चक्कर लेट हुआ है, बता ये भी बता दूं मैं। हाँ भैया 25 नंबर सिद्धार्थ। Yes, sir. ड्यूरिंग विंटर। Yes, sir. 25. During winter, the direction of the wind gets reversed. The wind blows from the land to the sea due to the difference in the air temperature between the land and the sea. This happens so because during winter, land cools down faster than the water in the oceans, and the temperature of water in ocean is higher than that of land. The warm air over the ocean rises up, creating a region of low pressure, and cooler air from the land rushes towards the ocean. Thus, the air flows from land to ocean, carrying only a little water vapor, hence, bring only a small amount of rain in winter season. नोट पढ़ना। Yes, sir. Note: the word monsoon is taken from the Arabic word "mawsam", which means season. ओके गाइस, मैं दोबारा से ये पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। देखो ये वाला जो मानसून है ना, ये आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून। मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे, एडवांसिंग मानसून, ये वाला एडवांसिंग मानसून है जो आगे बढ़ा जा रहा है। एंड गाइस दिस जो वापस आ रहा है ना इधर से, रेड वाला, ये वाला रेड वाला जो इट्स कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। ये विंटर्स के अंदर बारिश लेके आता है, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, यहाँ जो ये एरिया है सदर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या आ रही समझ में आया दोस्त? बता वेदांत बता। ये एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, जो मैंने प्रोसेस समझाया तो समझ नहीं आया क्या? जो प्रोसेस बताया। ओके चलो मैं दोबारा बताता हूँ, सब लोग सुन लो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबके लिए आसान हो जाएगा, बट जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अब तुम लोगों को फट से समझ में आएगा। प्लीज पे अटेंशन। सी ये बहुत डिटेल में 9th में पढ़ोगे तुम लोग, और अभी तुम अच्छे से समझ लोगे तो बाद में तुम्हें बहुत आसानी होने वाली है इसकी। देखो एक इंग्लिश की मूवी है मेडागास्कर, पता नहीं कितने लोगों ने देखी है? सर मैंने देखी है। सर है। सर मैंने सारे पार्ट्स देखे हैं। मैंने भी देखी है। मेडागास्कर सर, है वो क्या है चीज? ये क्या चीज होती है मेडागास्कर? सर क्या है क्या मेडागास्कर? सर बस मूवी का नाम है। मेडागास्कर इज अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, एंड ईस्ट अफ्रीका। इंडियन मानसून का बहुत क्लोज रिलेशन है मेडागास्कर के साथ। अब मैंने तुम्हें बताया इनका पहले, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जानना नहीं चाहता था, बट अभी तुमने पूछा है तो मैं बता दूं।
मॉनसून, मॉनसून, कम सून, क्योंकि इंडिया की तो आधी लाइफ मॉनसून पे डिपेंडेंट है। जब मॉनसून नहीं आता लोग भूखे मर जाते। ओके, सो व्हाट हैपेंस गाइस, दिस इज आवर कंट्री। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मेडागास्कर करके एक आइलैंड है, दिस इज अफ्रीका, दिस इज मेडागास्कर, मेडागास्कर। So a lot of things are happening here. See, we are now talking about the month of March. मंथ ऑफ मार्च में सर्दी खत्म हो गई है और यहाँ हीट होनी शुरू हो गई। रेड पेन से दिखाऊंगा, हीट, हीट हो रहा है, पूरा नदर्न प्लेन हीट हो रहा है। राजस्थान का एरिया, गुजरात, पंजाब, यूपी, दिल्ली, फिल्ली, पूरे में हीट हो रही है। मार्च से शुरू हो जाती है और फिर चलती है हमारा बैंड बजाते बजाते अप्रैल में, मई में हमें गर्मी का एहसास होता रहता है। तो जब जब यहाँ हीट होनी शुरू होती है तो एयर ऊपर राइज करेगी। क्यों वेदांत, करेगी कि नहीं? क्यों भाई वीर जेटली? यस सर। हीट राइज करेगी ऊपर। आपके कहने से जस्ट पहले लीव हो गया था, अब तो नहीं। तू बीच बीच में चला के लीव क्यों हो जाता है? तो ये हीटअप हो गई, एयर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, एलपी बन गया, लो प्रेशर। अगर हमारे पास हिमालयाज नहीं होते तो हमारा कंट्री इतना रिच नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, हम लोग भी गरीब होते, बाकी लोग, बाकी बहुत कंट्रीज सारे की तरह। अटैक्स हो चुके होते हैं। अटैक तो Yes, एक तो ये sir, अटैकर, और एक तो हमारे अटैकर को बचा के रखता चाइना है। के ऊपर सुनो, से बहुत ज्यादा अटैक हो चुके नहीं नहीं थे नहीं, इंडिया में। अटैक से लेना बड़ी देना भी नहीं नहीं है होती। यहाँ। अटैक से लेना देना नहीं है, यहाँ पे कुछ और बात बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे है माउंटेन्स का नाम है नंगा पर्वत। सर वो हमें विंड नंगा से पर्वत, बचाती है, नॉर्दर्न विंड से। हाँ, उस पर अगर तू श्रेयस, अगर तू वहां पढ़ने चढ़ने जाएगा ना तो समझ लेना नंगा होके जाना पड़ता है वहां पे, नंगा पर्वत है उसका नाम। और यहाँ पे है एक माउंटेन जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा, एन फॉर नंगा पर्वत, एम से नामचा बरवा। यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय है। ये हिमालय क्या करते हैं, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, बाकी कजाकिस्तान फजाकिस्तान में चलती रहती है, हमारे कंट्री में घुसने नहीं देता उन्होंने ठंडी हवाओं को, हिमालय रोक लेता है उनको। तो उसकी वजह से हमारा एरिया रहता है गर्म, हीट, और हीट की वजह से यहाँ एयर चलेगी पूरी ऊपर, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है मेडागास्कर, एचपी, ठंडा होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी अभी मैं तुम लोगों को समझाया था कि जब हम 23 मार्च की बात करते हैं, 23 जून की बात करते हैं, तो ये सन है और हम ऐसे 23 जून में बैठे हुए, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न है। तो अब क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, देखो पढ़ने में मजा आता है, डिटेल में जब पढ़े तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में भी। देखो ये रहा मेडागास्कर, नजर आ रहा किसी को मेडागास्कर? ये जहां मेरा अंगूठा Yes, रखा है, sir. मेडागास्कर। ये मेडागास्कर साउथ में है दोस्तों, साउथ में। तो जब ये यहाँ साउथ में है, ऐसे ऐसे साउथ में, ठीक है, तो ये ठंडा है, ये ठंडा है, ये ठंडा है, हम गर्म एरिया में, क्योंकि हम ऊपर है, हम ऊपर है, ये नीचे, हम ऊपर है, ये नीचे, हम सन की तरफ फेस कर रहे हैं, ये सन से दूर फेस कर रहे हैं, ये ठंडा हो गया, इज कोल्ड। नाउ बिकॉज इट इज कोल्ड, यहाँ की एयर ऊपर नहीं जा रही, नीचे की नीचे बैठी हुई है, हाई प्रेशर है। अब यहाँ एयर ज्यादा हो गई, यहाँ एयर कम है, तो एयर के पैटर्न बनने शुरू होते हैं, एयर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, and when it is moving, Vedang Malik, it is also picking up water from here, to pick up moisture. Okay, Vedang? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. Okay, अब एक मिनट श्रेयस होल्ड करना। जब ये मॉइस्चर पिकअप करके जहां जाएगी, इंडिया में घुसेगी, तो इट विल ब्रिंग रेन। सो दिस इज कॉल्ड एडवांसिंग मानसून, ये एडवांस करने वाला मानसून है, एडवांसिंग मानसून। सर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो जा रही है एयर तो बीच में ही रेन हो सकती है वहां पर? नहीं, रेन होने के लिए किसी न किसी पहाड़ी ने इसको रोकना पड़ेगा, रेन अपने आप से नहीं होती, किसी न किसी ने उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। जब वो आगे नहीं जा पाएगी तो उसका पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, Okay, अगर sir. तो वो चलती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश एक जगह पे होती है, इसका नाम है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ चेरापूंजी मेघालय में भी तो नहीं, बहुत वो तो इधर वो उसका रीजन दूसरा बताऊंगा अभी। यहाँ मेघालय और चेरापूंजी और उसका नाम मौसम राम, उसका नाम मौसम राम और चेरापूंजी, वो यहाँ। ऐसा लग लेकिन रहा है यहाँ जैसे भी बहुत किसी ज्यादा बारिश आदमी होती का नाम है।
हाँ, यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ये रेन यहाँ पे हिट करती है उसको बहुत ज्यादा, लेकिन ये माउंटेन इसको यहाँ घुसने नहीं देता, तो ये एरिया ड्राई रह जाता है महाराष्ट्र का। इसीलिए वहां इतनी सुसाइड होती है फार्मर्स की, क्योंकि बारिश आती नहीं। बारिश यहाँ से घुसती है बॉम्बे के पास से इंडिया में, इधर से मानसून घुसता है और फिर अपने आता है मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली को करता हुआ आता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये है एडवांसिंग मानसून। अच्छा, जब जैसे कि मई से लेके जून से शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर आते आते दोस्तों पोजीशन हो गई चेंज, हम जो यहाँ थे अब हम आ गए यहाँ पे। अब हम बराबर, हम जो ठंडा जो हमें होना था, अब नॉर्थ साउथ बराबर ठंडा होने, और जैसे अब इधर मूव करना शुरू करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे ठंडे, क्योंकि इंडिया इंडिया इधर होने लगेगा अवे फ्रॉम सन, और ये पार्ट गर्म होना शुरू हो गया। तो क्योंकि हम हैं गर्म अभी हॉट यहाँ पे, जैसे सितंबर आते आते हम हो गए ठंडा होना शुरू हो गए। सो वी आर हॉटर और वार्मर एंड सी इज कूलर। तो हमारी एयर जो है ऊपर भागना चाहती है, सॉरी सी इज हॉटर, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। हम लोग सन से दूर हैं, हम सन से दूर हैं तो हम कोल्डर हैं, और सी जो है ना इक्वेटर के नीचे का सी, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन, ये इंडियन ओशन रीजन पूरा का पूरा ये ठंडा होना शुरू हो, गर्म होना शुरू हो। तो वी आर नाउ कूलर एंड सी बॉब जो है वार्मर होना शुरू हो गया। अब क्योंकि बॉब वार्मर हो रहा है तो यहाँ की एयर ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे जो एयर थी हिमालय उसको आगे नहीं जाने देगा, तो वो टर्न होके इधर फ्लो करना शुरू कर देगा। किसको बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून। और जब रिट्रीट करता है तो बे ऑफ बंगाल से इधर आ रहा है भाई, इधर आ रहा है तो पानी उठाता हुआ लेके आता है, बे ऑफ बंगाल से वाटर पिकअप करता है। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु, टीएन तमिलनाडु। तो जब यहाँ से पार करता है तो यहाँ पे पहाड़ियों से टकरा के, यहाँ पहाड़ियां हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी है उसका नाम बड़ा अजीब सा, इलायची पहाड़ियां बोलते हैं उसको, 3 तरह की पहाड़ियां यहाँ पे। तो इनसे हिट करता है और यहाँ पे रेन कर देता है, तो इस वाले को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये विंटर उसमें होता है। और एडवांसिंग मानसून कब है? समर्स। Excuse me, sir. आई होप, एक मिनट, आई होप गाइस यू अंडरस्टूड द मानसून मैकेनिज्म। Yes, sir. बाकी लोग, Yes, sir. बाकी Yes, लोग, sir. बाकी लोग, हाँ भाई, Yes, sir. चलो समझ में आया हो गया? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. वेदांत, Yes. सिद्धार्थ, उमर, समझ आया भाई सबको? चलो ओके, श्रेयस का क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ श्रेयस। सर हिमालय सर हमें मदद भी करते हैं पानी देने में। बहुत ज्यादा हिमालय नहीं सर- होता हमारा कंट्री इतना ग्रेट नहीं होता। बोल तो दिया सर यार। हमारी कंट्री को नहीं सर, और भी कंट्रीज को मदद करते हैं हाँ पानी। ठीक ठीक। ओके, यार हिमालय नहीं होता तो हम चाइना पे कब्जा ना कर ले तब तक। ओके सर हमारी आर्मी सर ओके। फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, चाइना की थर्ड है। बिल्कुल। सर ज्यादा कुछ Okay. नहीं, कंपटीशन का होता। हाँ हाँ ठीक। राइट। कहाँ गया अपना? सिद्धार्थ ने पढ़ लिया। श्रेयस मनोज ने कह रहा है कल पढ़ा था इसने। श्रेयस रुक जाओ तुम अभी। श्रेयांश एंड देन उमर, नहीं श्रेयांश एंड देन श्रेयस मनोज। श्रेयांश जल्दी कर भाई, आई एम प्रेजेंटिंग। श्रेयांश रेडी? The difference in number the 26 26 जल्दी। the summer monsoon which brings heavy rain is very important to the farmers because this annual rainfall helps in growing crops. Farmers depend on the rain for the irrigations of their crops. Sometimes rain creates some problem also in nature itself. There are certain situations that can sometimes create disasters and can pose a threat to humans, animals, and plant life. Wind speed and wind speed डायरेक्शन। and wind direction play an important role in the formation of storms, cyclone, thunderstorm, etc. The instrument used to measure the wind speed is called Anemometer.
एनेमोमीटर, ओके। अच्छा गाइस, कल तुम्हें थंडरस्टॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं, और प्रिकॉशन तो चलो ठीक है, तो नॉर्मल। साइक्लोन कैसे बनते हैं ये भी समझाऊंगा, और इस चैप्टर खत्म कर देते, उसके बाद मैं तुम लोगों को करा दूंगा ये, फिर अपन वो सुपर वो करा टोर्नेडो, साइक्लोन, टोर्नेडोज एंड थंडरस्टॉर्म्स, एक और नाम होता है सर ह्यूरिकेन। हरिकेन। तीन चीजें एक ही है, नाम अलग अलग है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में सर उनको अलग 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 नाम अलग कॉन्टिनेंट्स में बोले जाते हैं। अलग प्रोटेक्शन और टोर्नेडो, एडवांस सर टेक्नोलॉजी ह्यूरिकेन अलग। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोला जाता है, साइक्लोन हाँ, तो सर नॉर्मल होता है, और साइक्लोन जापान, टॉर्नेडो। जापान जापान जापान। ओके सर टॉर्नेडो का नहीं पता मुझे। टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास के एरिया, कल मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा ओके तुम लोगों को इसका, ठीक है। चलो ओके गाइस, सर। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, तुम लोगों को हैरानी होगी कि कैसे एक छोटा सा आइलैंड एक इतने बड़े थंडरस्टॉर्म को, इतने बड़े साइक्लोन को क्रिएट करता है। टुमारो आई विल टेल यू द मैकेनिक्स, कंप्लीट अच्छा समझाऊंगा कैसे बनता है साइक्लोन थंडरस्टॉर्म। चलो ठीक है, अभी ओके मेरे सर। को तुम लोगों से एक ही बात कहनी है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो यस बात सर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाय 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 सर। बाय सर बाय 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 बाय। Bye, बाय sir. सर सर